Hello guys, my name is Tushar and welcome back to our channel. So our next lecture is on power and hierarchy of the criminal codes. What is the power of the criminal codes and the hierarchy of the criminal code? So we are discussing here. So the hierarchy of the criminal code in India is as follow. You can see the first one is the Supreme Court of India, being the apex court of India. It was established under Article 124 of Part 5 and Part 6 of the Constitution of India. The next one is the High Court of India, which is governed by the Article 141 of the Constitution of India. And also the next one is the Lower Court of India, has been classified as follow. So the first one is the Metropolitan Court, Session Court, Chief Metropolitan Magistrate, First Class Metropolitan Magistrate, District Court, Session Court, first class judicial magistrate, second class judicial magistrate, executive magistrate. These are the courts, lower courts of India, which comes after these courts of these lower courts of India comes before the High Court and the Supreme Court. The first one is the Supreme Court, the second one is the High Court, and then these lower courts of India. Now the constitutions of criminal courts in India. The session judge. First one is the session judge. So Section 9 of the CRPC talks about the establishment of session judge. So the High Court appoints additional as well as the assistant session judge. हाई कोर्ट अपॉइंट करता है सेशन जज को. सो द कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरली सिट एट सच प्लेसेस और प्लेसेस एज ऑर्डर बाय द जो सेशन जज है वो बेसिकली हाई कोर्ट के डिमांड पे ही चलता है. चाहे उसके अंदर का जज अपॉइंट करने की बात हो, चाहे सेशन जज का कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कहाँ पर बैठेगा, ये सारे कमांड आपको हाई कोर्ट ही देता है. But in particular cases, if the court of session is of opinion that it will be have to cater to the inconvenience of the parties and witness, it shall be preside it sitting at any other places after the consent of the prosecution and the accused. So according to the section 10 of the CRPC, assistant session judge are answerable to the session judge. So now the second one is the additional assistant session judge. दी ये भी जो है वो हाई कोर्ट के परमिशन से ही अपॉइंट होता है, इस कोर्ट का जज भी. और इस कोर्ट के जज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये कौन से केसेस देखे, जो है मर्डर है, थेफ्ट है, डेकॉइटी है, पिक पॉकेटिंग है एंड अदर सच केसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेशन जज. सो एडिशनल सेशन जज ये सारे कोर्ट्स देता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देयर इज विच इज नॉट ए मेट्रोपॉलिटन एरिया. अगर जैसे अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, these cities are not metropolitan area. So इस सिटीज़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के. सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ये भी हाई कोर्ट से ही अपॉइंट होकर आते हैं. सो एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट्स टू द सेशन जज. सो and now the next one is the chief judicial magistrate. So except for the metropolitan area, the chief the judicial magistrate of the first class जो अपॉइंट कौन करता है इसको, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को. सो द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर क्या होते हैं कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है, बट ओनली द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में बी डेजिग्नेटेड. बट जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट, अगर हमने किसी नॉर्मल मजिस्ट्रेट जज को अपॉइंट कर लिया तो विच इज़ ओके, बट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर फर्स्ट क्लास का होगा तो ही उसको इन फ्यूचर डेजिग्नेशन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा. So now the next one is the metropolitan magistrate. So judicial magistrate is the other thing and the metropolitan magistrate is the other thing. So they are established in the metropolitan area. और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी पावर होता है हाई कोर्ट के पास कि उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करे. प्लस द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो अपॉइंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भी पावर होता है कि वो अपने अंडर एज द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सके.
तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का वर्क होता है वो अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेशन जज के अंडर होता है। सो दीज ये है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सो according to the section 20, in every district and in every metropolitan area an executive magistrate shall be appointed by the state government and one of the them become district magistrate। सो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, चाहे वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया हो या ना हो, आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करना होता है और वो अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। So these are all the hierarchy of the criminal code and the constitution of criminal code in India. Now the next one is power of criminal code. What was the power of the criminal code has? The first one is the apex court. So the Supreme Court is the ultimate court at the top of the judicial system. It has the supreme judicial authority in our country, as we all know. So the federal court आता है सबसे पहले, जो आर्टिकल 31 में होता है, जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, गिव द पावर टू द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट to resolve the disputes arising between the central and the state or between the states। फेडरल कोर्ट के पास पावर होता है कि अगर वो किसी टू स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो आर्टिकल 31 के अंडर फेडरल कोर्ट के पास को पावर मिलता है सुप्रीम कोर्ट से कि वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Only the apex court has the power to settle a question based on any issue related। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि सिर्फ एपेक्स कोर्ट के पास ही पावर होता है जो सेटल कर सके किसी भी इशू रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशंस के जो भी केसेस वगैरह होते हैं वो सिर्फ एपेक्स कोर्ट के पास पावर होता है कि उसको सेटल आउट कर सके। Now what is the power of judicial review? So आर्टिकल 137 है, इसमें ये कहता है कि all laws जो भी laws बनते हैं enact are subjected to security by the judiciary। So पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का यही है कि कोई भी पावर अगर जो भी है इनैक्टेड होते हैं तो उसको चेंजेस कर सकते हैं जुडिशियल, उसको रिव्यू करना है, जुडिशियल रिव्यू का पास पावर होता है अंडर आर्टिकल 137। नाउ द कोर्ट ऑफ अपील। The apex court is the highest court for appeal in India, and it has the power to hear appeal from the all cases lying in the various high court and the subordinate courts of our country। So a certificate of the grant is to be provided according to the article 132, 133, 134 of the constitution विद द रिस्पेक्टिव। जैसे कि कोर्ट ऑफ अपील का क्या पावर है कि अगर आपको एपेक्स कोर्ट में सबसे हायर कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट ग्रांट होना चाहिए आर्टिकल 132, 33, 34 के अंडर कि जो भी जजमेंट है, डिक्री है, फाइनल ऑर्डर है ऑफ ऑल केसेस ऑफ द हाई कोर्ट, जो भी क्वेश्चंस अराइज हुए, जो भी जजमेंट आया हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो आप प्रोवाइड करवाइए तभी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप अपील कोर्ट ऑफ अपील नहीं कर सकते हैं एपेक्स कोर्ट के अंदर। Also, appeal to the Supreme Court can be made under the following categories, which are constitutional matter, civil, criminal, special leave petition। ये 4 मैटर है जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। ये हो गई एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात। नाउ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के क्या पावर है, क्या वो कैसे फंक्शन करता है, उसके अंदर कौन से केसेस आते हैं, कैसे आते हैं। सो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है लाइक इन सम इश्यूज द केस कैन बी डायरेक्टली, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, उसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, मैरिज एंड डिवोर्स केसेस, ये केस के मैटर होते हैं तो हम डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नाउ द अपीलेंट जुरिस्डिक्शन, इसका क्या मतलब होता है कि अपीलेंट जुरिस्डिक्शन मतलब कि जो हाई कोर्ट के पास ये केस आया है वो ट्रायल कोर्ट से आया है,
मतलब डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट से आया है। उसके बाद आता है सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। इसका क्या मतलब होता है कि this refers to the power of general superintendence of the high court over the matter of all the subordinates court. So ये है तीन जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के अंडर के, कि हाई कोर्ट में हम कैसे केस फाइल कर सकते हैं, किस टाइप के केसेस जा सकते हैं. सो द पावर ऑफ द वेरियस कोर्ट हैज बीन हाईलाइटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्ट, the power and the function of the subordinates criminal court have been provided under CRPC as mentioned under section 6. So court of session, first class judicial magistrate, metropolitan magistrate in any metropolitan area, second class judicial magistrate, executive magistrate, as we all discussed before earlier. Now the power of the various subordinate court is mentioned from section 26 to 2035, which I have discussed earlier in my lecture. You can also see the power of the courts of CRPC section 26 to 35. I have also discussed this section in detail also. So you can see my previous video or the next video, the power of the court. So section 26 का power ये होता है कि कोई भी अगर ऑफेंस होता है आईपीसी के अंडर, तो वो पहले ट्राई होता है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट एज स्पेसिफाइड बाय द फर्स्ट शेड्यूल. नाउ अगर कोई भी केस हो, ऑफेंस कमिट हो रहा है अंडर सेक्शन 376, 376 ए, 376 बी, सी, डी, ई, ये चार एक दो तीन छः सेक्शंस के अंदर अगर कोई भी ऑफिसर होता है तो इसके लिए वुमेन जज को अपॉइंट किया जाता है. फिर नेक्स्ट आता है सेशन कोर्ट. The state government established the session court which has to be presided by a judge appointed by the, कोई भी जज जो होता है वो हाई कोर्ट से ही अपॉइंट होता है, चाहे वो सेशन जज हो या असिस्टेंट सेशन जज हो, वो हाई कोर्ट से ही अपॉइंट होकर आता है. और फिर नेक्स्ट आता है द मजिस्ट्रेट कोर्ट. द मजिस्ट्रेट जजेस आर यूजली अपॉइंटेड. मजिस्ट्रेट कोर्ट के भी जज जो होते हैं वो हाई कोर्ट से ही अपॉइंट होते हैं अंडर सेक्शन 27 विच इज जुवेनाइल. जो बेसिकली मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज जो होते हैं वो जुवेनाइल जस्टिस के केस देखते हैं. लाइक अगर 16 से 18 साल के बच्चे ने अगर कमिट क्राइम किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग केस देखते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं हमने डिस्कस की है अपने इस लेक्चर में. हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कैसे वर्क करता है, कितने टाइप के कोर्ट होते हैं और वो सारे उनके पावर्स क्या होते हैं, वो किस किस जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, कौन से कोर्ट में कौन से केसेस ज़्यादातर देखे जाते हैं. हमने ये सारी चीज़ें अपने पूरे इस लेक्चर में डिज़ाइन किया था. सो नाउ द कंक्लूजन इज द हायरार्की ऑफ द कोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड इन सच मैनर that become easy for everyone who is living in the country to knock the door of the court whenever the dispute arises. So it also provide a platform for the citizen for appealing to the higher court in case they feel that justice has been not served or denied to them by the lower court. So India is a country with huge population in it. Also, therefore, it needs this existing systems of judiciary to prosper and make its process easier so that people can approach it easily, that so that justice is given to all the citizens of this country also. Thank you so much guys. Please do subscribe our channel and I hope you like my lectures. And if you have guys any question, please comment down the question. I would be glad to response with your question. Thank you so much.